Hello students and welcome back to my YouTube channel. This is Kashima Soni and today we are going to start another topic in the chapter series of mechanism of organic reaction. So far we have discussed these few topics that includes arrow notations, types of bond fusion, reagent substrates, types of reagents, types of organic reaction, energy considerations. Then we have started reaction intermediates and we have completed three reaction intermediates that includes carbocation, anion and free radicals. So far we have uploaded approximately 5 videos in this particular chapter series, and if you have not watched any of those videos, you are definitely not going to understand what is exactly happening in the chapter. Okay, so first of all, see the previous 5 videos and the link I have mentioned in the description box below. So go check those links and then switch to this part of the chapter for better understanding. Okay, so without wasting any more time, let's talk about carbenes in detail in this particular video. So what are carbenes? Let's see its basic introduction. First of all, your carbenes, they are also short-lived, highly reactive chemical species, just like the previous 3 cases that we have discussed, that is carbocation, carboanion, and another one was free radicals. Okay, so as I said that they are also a short-lived, highly reactive chemical species. अब short-lived जो मैं बार-बार use कर रही हूँ term, why am I using that? मैंने आपको कार्बोकेटाइन डिस्कस करते टाइम बताया था, रिएक्टिव इंटरमीडिएट की इंट्रोडक्शन में ही ये चीज क्लियर की थी कि जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की कन्वर्जन कर रहे हो तो एक स्टेज आती है बीच में जहां आपके पास एक शॉर्ट लिव्ड हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज बनता है. शॉर्ट लिव्ड का मतलब ये है कि उसका लाइफ टाइम बहुत कम है, ठीक है, और उसका बीइंग मोर रिएक्टिव वो इमीडिएटली जाके कन्वर्ट हो जाएगा आपके प्रोडक्ट में. अब वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट कोई भी हो सकते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बानाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन. तो इसीलिए हमने टर्न बाय टर्न, स्टेप बाय स्टेप एक एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट को यहाँ पे समझा है. दैट इज इट. ओके, so without wasting any more time, let's just talk about carbenes over here. So these are neutral divalent carbon species. What they are? Neutral. Neutral का मतलब किसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव. These are neutral divalent carbon species in which carbon atom is bonded to any 2 monovalent atom or groups by covalent bond and has 2 non-bonding orbitals containing 2 electrons between them. They are called carbenes. ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है. तो अगर बाई चांस अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए दैट व्हाट इज कार्बीन, तो आप ये पूरी डेफिनेशन वहां पे देंगे, ठीक है. और इसे आप मिथाइलिन भी बोलते हैं. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं इसकी डेफिनेशन को. लेट मी क्लीन द स्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड चेंज द कलर ऑफ द पेन. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, दिस इज अ डाइवेलेंट कार्बन स्पीशीज और प्लस न्यूट्रल डाइवेलेंट कार्बन स्पीशीज. डाइवेलेंट मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी आपके पास? 2. ओके, सो अभी देखिए, मतलब इसके वैलेंस शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यहाँ पे 2. ओके, अब देखो यहाँ पे, लेट मी रीराइट इट फॉर यू. ओके, हाँ जी, तो आप ये किस तरह से लिख सकते हैं? द कार्बन विच इज न्यूट्रल हैविंग +2 that is 2 electrons in its valence shell is represented something like this in case of carbene, which is further attached to your any of the 2 atoms. Let's just say monovalent atom. Let's just say this monovalent atom is X. Okay, कुछ भी हो सकता है X आपका. Okay, it could be any of your monovalent atom, right? And as I said, it has 2 electrons in its valence shell, so you can represent the carbene something like this. ठीक है, अगर मान लो कि आपके पास X की जगह पे हाइड्रोजन है तो आपके पास वो मिथाइलिन बन जाएगा इस तरह से. अगर आपके पास क्लोरीन है तो वो बन जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप एक और आपका कार्बीन स्पीशीज देख सकते हो. ठीक है, तो कार्बीन आपके पास क्या हुआ? यू कैन सी दैट इट इज अ न्यूट्रल डाइवेलेंट कार्बन स्पीशीज जिसमें कार्बन आपका बॉन्डेड है किन्हीं भी 2 मोनोवेलेंट एटम से बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, दे आर बेसिकली इन द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. ओके, इसे आप मिथाइलिन भी बोलते हैं. तो आई होप आपको डेफिनेशन is quite clear to you people. And proceeding further, as I said earlier only, that they are short-lived, highly reactive chemical species. Since your carbon over here has only 6 electrons in its valence shell
and thus it has a stronger tendency to complete its octet, because देखो ये आप इस तरह से लिख रहे हो ना, मिथाइलिन का एग्जांपल लेके समझा रही हूँ आपको, ठीक है। तो जो आपका कार्बन है, कार्बन के पास यहाँ पे दिस इज हैविंग 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, ठीक है। मतलब इसके पास there is a chance of completing its octet by accepting 2 electrons from some other atom, ठीक है। तो ये अपना octet complete कर सकता है, ठीक है, which is why this is another highly reactive species, just like the case of your कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में भी कार्बन आपका जो था that is having 6 electrons in it, okay। तो वो भी, उसके में भी चांसेस थे कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके अपना octet complete कर सकता था, ठीक है। तो सेम बात यहाँ पे हो रही है आपके कार्बीन्स में, ठीक है। And thus it has a strong tendency to complete its octet by gaining 2 or more electrons. Thus your carbene behave as a Lewis acid or electrophile. Okay? ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना कार्बन यहाँ पे, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। और अगर वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो क्या एक्ट करेगा, एज ए लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल। ओके, सो दिस वाज समथिंग अबाउट द इंट्रोडक्टरी पोर्शन। नाउ talking about the preparation or generation of carbenes। अब देखो सबसे पहला आपके पास जो यहाँ पे प्रेपरेटरी मेथड है इज बाय थर्मोलिसिस, दैट इज बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन और ऑक्सीडेन। सी, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, यू विल बी सीइंग द डिकम्पोजिशन ऑफ योर साइक्लोप्रोपेन एंड ऑक्सीडेन्स, और उसकी डिकम्पोजिशन आप कर सकते हैं थर्मली एज वेल एज फोटोकेमिकली। दोनों वे से आपके पास क्या बनना चाहिए, आपके कार्बीन्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब वही हम समझेंगे कैसे। So first of all you can see over here the example has been taken of phenyl cyclopropane। अब आपने phenyl cyclopropane का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लिया, प्रॉपरली लिख लिया उसको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से इसकी डिकम्पोजिशन करनी है, आपके पास क्या बने, आपका कार्बीन, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो आप फोटोकेमिकली भी कर सकते हो और थर्मली भी इसकी डिकम्पोजिशन को कर सकते हो। प्रोसीड, राइट। अब आपको बेसिकली यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज करनी है। होमोलिटिक क्लीवेज आप इस तरह से करोगे कि आपका जो एक प्रोडक्ट बने वो कार्बीन जरूर बने, ठीक है। अब वही देखेंगे हम कि उन्होंने क्या किया है एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। सो ओवर हियर यू कैन सी इन केस ऑफ phenyl cyclopropane what is exactly happening is that in this particular bond C, यहाँ पे आपके पास इस कोवेलेंट बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन चला गया है आपके CH2 ग्रुप पे, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है इस कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। ये जो बना आपके पास, समझ आ गई बात। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से तो बनेगा नहीं, उसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो वो मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। एंड देन इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये आपके पास क्या निकला, एज मिथाइलिन। एक कार्बन बनके यहाँ पे बाहर आ गया। ये समझ आ रही है बात, मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनो इसको। देखो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, बेसिकली होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है यहाँ पे, और आपको इस तरह से क्लीवेज करनी है कि आपके पास एटलीस्ट एक प्रोडक्ट जो है आपका वो क्या निकले, कार्बन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का यहाँ शिफ्ट हो गया, कोवलेंट बॉन्ड का एक यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपको पता लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे और मिल जाएगा तो यहाँ आपका बन जाएगा पाई बॉन्ड, बना दो, ठीक है। वो आप कहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे चला गया, निकल गया क्या आपके पास, मिथाइलिन। और सेकेंड प्रोडक्ट जो आपका बना दैट इज फिनाइल इथीन, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ऑल इट नीड्स इज अ प्रॉपर प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आपके पास एक तो एग्जांपल ले लिया साइक्लोप्रोपेन का, एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे ऑक्सीडेन का, दैट इज 1,2-डाइफिनाइल ऑक्सीडेन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम ही केस है, सेम ही चीज है, होमोलिटिक क्लीवेज की है, फिर आपका फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन करके आपके पास बना है यहाँ पे फिनाइल कार्बीन, एंड अनदर प्रोडक्ट इज योर बेंजल्डेहाइड। So I hope that is quite understandable for you people now. Another example that we have taken is of your preparatory method by thermolysis or photochemical decomposition of diazoalkane और कीटीन। अब आपने क्या एग्जांपल लेना है यहाँ पे, डाइएजोअल्केन और कीटीन का। ये है आपका डाइएजोअल्केन दैट इज डाइएजोमीथेन, एंड दिस इज योर कीटीन। डाइएजोमीथेन में आप क्या करेंगे यहाँ पे, कैन यू जस्ट सी टू इट एंड टेल मी दैट व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग ओवर हियर। दिस इज एक्चुअली अकरिंग
So you can see one thing is quite clear to you that we need to obtain carbon in the as a main product over here, right? So डाइएज़ोएल्कीन का एग्जांपल जब लिया है तो आपके पास इस तरह से इसका स्ट्रक्चर लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यू कैन रिमूव नाइट्रोजन एज अ गैस फ्रॉम हियर। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? आपके पास अगर ये स्ट्रक्चर बना है, क्लीन इट फॉर यू, ओके, ये स्ट्रक्चर आपके पास बना है, if you can see that whether the delocalization of electrons is occurring in the entire system or not, so you can see that is happening, ठीक है। आपके पास इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बन गया। जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ के पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स आपके CH2 ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो गए, रिजल्टिंग इनटू दिस पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो बात क्या है, नाइट्रोजन पे स्टिल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करेगा। कैसे? यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के, और ये तो निकल गया एज नाइट्रोजन गैस बाहर। पीछे जो रह गया दैट इज लेफ्ट आउट पोर्शन इज योर कार्बीन, दैट इज मिथाइलिन, ठीक है। अब अगर आप सेम एग्जांपल देखो, यहाँ पे टेकिंग कीटीन, सेम चीज है, सेम ही प्रोसेस हो रहा है, लेकिन होगा क्या कि आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो कीटीन के एग्जांपल में your CO group is removing, CO group is left out over here। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कार्बोनिल ग्रुप कैसे बाहर निकल रहा है, यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके ये बाहर निकल गया। अब पीछे जो आपके पास देखो, एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, एक है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेके कार्बोनिल ग्रुप तो निकल गया बाहर, निकल गया, राइट। अब पीछे आपके पास यहाँ पे एक और बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड, उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ पे मिथाइलिन कार्बिन आपका बन जाएगा। वेरी इजी टू रिमेम्बर, वेरी इजी प्रेपरेटरी मेथड, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यूजुअली पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, sorry, it's not ion, on chloroform, okay, by the action of strong base usually potassium tertiary butoxide on chloroform, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी बेसिकली इट इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन सिंस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर लॉस्ट फ्रॉम द सेम कार्बन एटम। अब देखेंगे ये कैसे हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये है आपके पास क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3, राइट। अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यू कैन सी दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ योर स्ट्रॉन्ग बेस ओवर हियर, राइट। तो बेस का काम क्या होता है, टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया उसने, ठीक है, कर लिया एब्स्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ से क्या होगा, आफ्टर एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोटोन नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट शिफ्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन, हो गया। अब आपके पास ये तो निकल गया बाहर, ठीक है, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके बेस तो बाहर निकल गया, पीछे आपके पास क्या रह गया, कि अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखना है, अल्फा एलिमिनेशन हो रही है। अल्फा का मतलब क्या है कि अल्फा पोजीशन से अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसी कार्बन के साथ जो एक क्लोरीन ग्रुप लगा होगा वो आपका एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकलना चाहिए, सो एज टू मेक अ स्टेबल कार्बीन। समझ आ रही बात क्या हुआ यहाँ पे, कि जिस कार्बन के साथ ये कार्बन है, ठीक है, दिस इज योर अल्फा कार्बन बेसिकली, ठीक है, और ये सारे के सारे आपके पास क्या है, इसके साथ अल्फा ग्रुप से अटैच है, और दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन। समझ आ रही है बात क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पे मान लो कार्बन के साथ यहाँ पे इस तरह से ग्रुप होता, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आप अल्फा मानोगे और इसे आप मानते हैं बीटा, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे अल्फा के साथ एक हाइड्रोजन लगा है, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू काउंटेड एज अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। जब आपके पास प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो गई कार्बन के ऊपर, यहाँ से आपका एक जो क्लोरीन है वो बाहर निकल जाएगा। समझ आ रही है बात क्या हुआ है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कार्बन आपका देखो वैसे टेट्रावेलेंट है, और यहाँ पे टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये पर्टिकुलर इंटरमीडिएट, ठीक है, विच इज व्हाई इट इज अनस्टेबल। सो टू सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर कंडीशन एक क्लोरो ग्रुप भी बाहर निकल जाएगा इस तरह से आपके पास, और आपके पास बन जाएगा आपका डाइक्लोरो कार्बीन। क्वाइट इजी, राइट। सो चलते हैं आगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ कार्बीन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, depending upon the distribution of two non-bonding electrons between the orbitals, the carbons are of two types, singlet and triplet. Basically कि आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर था ना आपका एक मिथाइलिन का कार्बन का, राइट। तो अब ये जो दो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह के कार्बन बनते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट, ठीक है। इन्हें समझेंगे डिटेल में।
टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगलेट कार्बीन, यहाँ पे आपके पास क्या है, यू कैन सी इफ two non-bonding electrons are present in one orbital and the other orbital is empty, that carbon is said to be known as singlet carbon. I'll show you how it is. Yeah. So over here you can see the example of singlet carbon, the diagram of singlet carbon. अगर आपके दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, that is going to be your singlet carbon. ठीक है, और अगर वो आपके दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आपका हो जाएगा ट्रिपलेट कार्बन. इजी है, ठीक है. चलिए पीछे वापस. ओके, so this is one thing about your triplet carbon that you need to remember, that if the two non-bonding electrons are present in the single orbital and the other orbital is empty over here, that carbon is said to be known as singlet carbon. आप बना दोगे साथ में उसका डायग्राम, ठीक है. और सिंगलेट कार्बन को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर आपके पास सिंगलेट मिथाइलिन है तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से. Why like this? Because एक ही ऑर्बिटल में जब आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, they are not going to be aligned parallelly, ठीक है, वो एंटी पैरेलल आपके पास अलाइंड होंगे. समझ आ रही है बात, ठीक है. So that is one thing. Since a singlet carbon has no unpaired electrons, it has no dipole moment and hence it is diamagnetic. Obviously कि आपके पास जो सिंगलेट कार्बन है उस केस में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने को मिलते हैं, दोनों एक ही जो ऑर्बिटल है उसमें पेयर्ड फॉर्म में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. So it is said to be diamagnetic, ठीक है, ठीक है. And because they are diamagnetic, they are not that easily detected by, or not at all detected by electron spin resonance spectroscopy. So I hope that is quite loud and clear to you all. ठीक है, एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं. क्या है सिंगलेट कार्बन? ऐसा कार्बन जहां आपके दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और दूसरा जो आपके पास पी ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है. ठीक है, सिंगलेट कार्बन को या सिंगलेट मिथाइलिन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन आपको जो सिंगलेट कार्बन है उसको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, विच इज वाई उसका डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है कोई, और ये डायमैग्नेटिक होते हैं. क्योंकि ये डायमैग्नेटिक है इसलिए ये इजिली डिटेक्टेड नहीं होते हैं बाय योर ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, क्लियर है सभी को. अब नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके ट्रिपलेट कार्बन की. अब केस ऐसा है जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि अगर दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड हैं, यानी कि वो दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं हैविंग इक्वल एनर्जी विद देयर स्पिन्स पैरेलल इन अकॉर्डेंस विद हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, द कार्बन इज सेड टू बी ट्रिपलेट कार्बन. बच्चे देखो, लेट मी चेंज इट टू द पेन फर्स्ट ऑफ ऑल. अब देखो पी ऑर्बिटल की बात हो रही है ना, आपके पास इस तरह से पी ऑर्बिटल होते हैं, px py pz. ठीक है, अब आपके पास अगर आप हंट्स रूल के अकॉर्डिंग चलते हो, देखिए डेफिनेटली आप चलते हो, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है मान लो, तो वो सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे सभी ऑर्बिटल से, देन आपके पास पेयरिंग शुरू होती है. ऐसे ही होती है. ठीक है, तो अगर हमने बोला हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वो आपके पास इस तरह से प्रेजेंट होंगे. ठीक है, दो अलग अलग ऑर्बिटल्स है, और अगर दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो केस आपके पास हो जाएगा ट्रिपलेट कार्बन का. ठीक है, दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है जिनकी एनर्जी जो है वो इक्वल है, हैविंग इक्वल एनर्जी विद द स्पिन पैरेलल इन अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल. दैट काइंड ऑफ कार्बन इज नोन एज योर ट्रिपलेट कार्बन. सो ट्रिपलेट कार्बन को आप कैसे लिखेंगे? इस तरह से, जैसे आपके पास मान लो ट्रिपलेट मिथाइलिन है तो आप उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे. उस केस में आपके इलेक्ट्रॉन्स पैरेलली अलाइंड होंगे. ठीक है, बिकॉज वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है. और ट्रिपलेट कार्बन के केस में परमानेंट डाइपोल मोमेंट आपको देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, विच इज वाई दे आर पैरामैग्नेटिक एंड कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाय ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी. डायमैग्नेटिक कंपाउंड ESR से डिटेक्ट नहीं होते हैं बट पैरामैग्नेटिक होते हैं. ठीक है, समझ आया? ये देख सकते हैं आप इसकी डायग्राम. इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर that this is the structure of your singlet carbon and this is the structure of your triplet carbon. So the carbon which is attached to any of the two monovalent atoms forming forming sigma bond with them. How? Because this particular carbon over here is sp2 hybridized. Now how it is sp2 hybridized? Because it contains 2 bond pairs plus 1 lone pair. तो टोटल आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी यहाँ पे. समझ आई बात? ठीक है, सो टोटल आपके पास यहाँ पे 3 आए ना पेयर्स, 2 लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर.
तो वहां से आपने क्या बता दिया कि आपके पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं, दैट इज sp2। ठीक है, वो आपका अगर आप बात करो ट्रिपलेट के केस में तो केस अलग होगा। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो केस था इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका केस है इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बाइन, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन unhybridized p orbital, ठीक है, these all p orbitals are unhybridized, that means they are not participating in the hybridization, which is why we are not going to calculate them while checking the hybridization, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप 2 बॉन्ड पेयर्स को कंसीडर करोगे तो आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया आपके पास, ठीक है, समझ आई बात। दैट इज द थिंग ओवर हियर, आई होप दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल एंड द स्ट्रक्चर इज मस्ट। वाइल अगर आप सिंगलेट एंड ट्रिपलेट का डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आपको प्रॉपर्ली उसको एक्सप्लेन करना है, सिंगलेट ट्रिपलेट की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताई वो देनी है, डायग्राम बनाना है, इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये आपकी वही डायग्राम आ गया sp2 सिंगलेट कार्बाइन का, ठीक है। ये आपके पास आ गया sp2 ट्रिपलेट कार्बाइन का बेंट ज्योमेट्री, इसकी 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है आपके पास, एक बेंट और एक आपके पास है ट्रिपलेट लीनियर। लीनियर वाला केस आपकी बुक में गिवन है दिस वन, ठीक है, लेकिन अदरवाइज आपके पास इस तरह से भी डायग्राम आप बना सकते हो, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाइल यू आर टेलिंग द डिफरेंस आप ये दोनों बनाएंगे, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बाइन, you can see over here in case of singlet carbon your central carbon is sp2 hybridized. So दो sp2 hybridized जो आपके ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे, they are used in the formation of 2 sigma bonds like this. ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, with 2 monovalent atoms, right? While the third sp2 orbital contains a non-bonding electron. तो आपके यहाँ पे third sp2 orbital में non-bonding electrons present है. So the unhybridized p orbital is however empty. Singlet carbene is a bent chemical species. So these are the 3 points which is what you need to remember. Why it is bent? Because इसका स्ट्रक्चर देखो ना कैसा बन रहा है आपके पास, बेंट ज्योमेट्री बन रही है, इस तरह से बन रही है, ठीक है, इस तरह से बन रहा है आपके पास। So this is how you need to remember, just like your water, water की तरह इसका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। So ट्रिपलेट का कार्बाइन में अगर आप बात करें, सेंट्रल कार्बन इज sp hybridized. 2 of the sp orbitals are forming 2 sigma bonds with 2 monovalent atoms, while the 2 unhybridized p orbitals are perpendicular to each other, containing 1 electron each. Thus आपका जो ट्रिपलेट है वो लीनियर स्पीशीज है and behave like a biradical और diradical. इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इस अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो आप ये वाला डायग्राम कंसीडर करोगे, जस्ट अ सेकेंड, और ये वाला डायग्राम कंसीडर करोगे, लेट मी चेंज द कलर, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि इस तरह से भी पॉसिबल है, बट व्हाइल यू आर मेकिंग अ डायग्राम यू आर जस्ट गोइंग टू गो विद दीज 2 डायग्राम्स व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस, राइट। सो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की भी बात हमने कर ली डिटेल में, सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब चलते हैं स्टेबिलिटी पे। टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बाइन, योर ट्रिपलेट कार्बाइन इज ऑलवेज, दैट इज ट्रिपलेट, अगर आप एग्जांपल लेके बात करो तो ये ट्रिपलेट मिथाइलिन जो है, कलर चेंज करने दो मुझे पहले, ये जो आपका ट्रिपलेट मिथाइलिन है ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिंगलेट मिथाइलिन, ठीक है बच्चे, ठीक है। क्यों? बिकॉज in the singlet carbene 2 non-bonding electrons are present in the same orbital. अब देखो एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन की जो है चांसेस ज्यादा है, ठीक है। एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसमें रिपल्शन की चांसेस ज्यादा है, और ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो क्या करेगा, उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, सिंगलेट स्टेट की एनर्जी को, और अगर उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, सिंपल सा केस है। ट्रिपलेट आपका क्यों ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज ट्रिपलेट के केस में आपकी जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कम है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होंगी तो एनर्जी भी ट्रिपलेट स्टेट की कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट ज्यादा होगी। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। कई बार रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल लिया है, ओवर हियर यू कैन सी दैट ऐसे कार्बन जिसमें सेंट्रल कार्बन जो है वो अटैच है ऐसे 2 एटम से जिनके ऊपर खुद के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है, वो उस तरह के कार्बन आपके मिथाइलिन से ज्यादा स्टेबल होंगे। क्यों? रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। मैंने क्या बोला, फिर से सुनिए इसे ध्यान से, हाँ,
तो ऐसे कार्बीन्स जहां पे कार्बन जो आपका उन दो ग्रुप्स के साथ अटैच है जिनके ऊपर खुद के लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है, वो ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू दिस कार्बिन, मिथाइलिन कार्बिन। क्यों? क्योंकि मिथाइलिन के केस में आपको रेजोनेंस इतनी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। बट आपको जहां भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो बेसिकली आपका स्टेबल होगा, ओवरऑल उसकी स्टेबिलिटी ओवरऑल सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो उस तरह के कार्बेन आपके पास ज्यादा स्टेबल होंगे। सो देयर वी आर बाइंडिंग अप आवर टॉपिक carbenes, and that's all about this topic. So in the next video we will be coming up with the topic nitrene. So if you have any sort of queries so far in this particular chapter, you can mention on the comment section below, and do follow my channel, that is Topochemistry by your own Kashima Soni, and you can press the bell icon for the latest update for all the latest videos I'm posting on my channel. And do like, do comment, do subscribe, do share my channel, and shower your love. Thank you and all the very best.